Hi guys, welcome to another TISNET podcast and today we have Kavita Verma from बिहार पटना। बिहार से तो काफी लोग हैं TISS के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। So she got selected for Sustainable Livelihood and Natural Resources Governance, Tuljapur campus. So congratulations Kavita first of all. Thank you. And today is the time when we will discuss in thorough about your preparation part जो अभी तक किया मेहनत किया and finally you got the result. And secondly, interview, which is very, very important. Interview, how was your interview and what types of question asked, and a bit of tips and some other thing if you want to share. Okay, so wanted to understand first of all, how's the feeling after getting the TISS? It was great feeling when you got TISS. It's a brand in itself. कि आप TISS में जा रहे हो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है. I come from the community जहाँ पे इन सब चीजों की उतनी वो समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट वहां से फिर निकलना मेरे लिए काफी काफी बड़ी बात थी. TISS, it's a dream. It's a dream. Great. So when you started your preparation and what was your strategy towards the preparation? I didn't follow any kind of strategy. ऐसा कुछ था नहीं कि मैं 16 hours पढ़ रही हूँ या 12 hour पढ़ रही हूँ. I was working by मैं काम भी कर रही थी साथ में और ये पढ़ाई भी करनी थी. तो मैं 3-4 घंटे एक सीरियस जो होता है ना, एक सीरियसनेस के साथ, जो डेडिकेशन के साथ, वो 3-4 घंटे की प्रिपरेशन थी. माय मैथ्स वर्क वाज वेरी वीक. तो मेरे मार्क्स उसकी वजह से काफी कम भी आए मैथ्स की वजह से. But I focused on general knowledge parts. You sent best book जो मैंने मैनवर्स के चैनल्स पे ही देखा था. वो लोग यूसेंट को बोलते थे फॉलो करो, तो मैंने वो बुक फॉलो की थी. तो मेरा काफी जीके कवर हो गया उससे, एंड रीजनिंग वगैरह तो फिर मैथ्स में ही आ जाते थे. काफी क्या बोलूं मैं कि वो बहुत हार्ड पार्ट था मेरे लिए, काफी टफ पार्ट था. बट फिर वही 3-4 घंटे की मेहनत जो मेरी थी. और जनरल नॉलेज के लिए तो मैं वीडियोस देखते ही रहती थी, या फिर ल्यूसेंट की बुक पढ़ते रहिए. वो आप एनी टाइम पढ़ते रहिए. जस्ट टर्न द पेज, एक भी पेज में आपको काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिल जाती हैं. Okay. So with regards to all this section, English and your GK, कौन सा section you found कि ये tough है, इस पे थोड़ा time देना पड़ेगा, and which section you find very easy basically? Easy, basically, obviously, GK section, general knowledge section was easy for me. And fortunately, I received that कि मैंने उस पर मेहनत की, तो उसने मुझे honestly वापस भी दिया, क्योंकि मेरे GK में ही अच्छे मार्क्स थे. Quant, though, I feel so hard to complete the quant. And English was good and bad types, 50-50. Okay, okay. So Great. my mantra for the success was only GK and English. Quant में थोड़ा थोड़ा ठीक है. वैसे TISS का एग्जाम जो है, that is more of a GK oriented exam. 40 क्वेश्चन आते हैं out of 100. Yeah. Fine. So when it's come to the interview part, when you got selected, result आ गया, and जब interview जो आपका था, tell me the interview experience, how it was, what question they had asked you, and any kind of a battery down moment came in the interview. My extempore was not very much good. They asked a question about animal interaction with humans. Nowadays, it's increasing. So I was not prepared for this topic, so it was not very much good. But I spoke for about 2.5 minutes. It was okay types. But actually, I was working on solid waste management. Okay. And I have also worked on air pollution type and water pollution projects. So they asked about 20 questions on that. Over that, it was 21 questions. Okay. Upon that, they were just cross questioning me कि अच्छा ये हो गया तो अब इसके बाद क्या, they asked like a case study question कि फिर उन्होंने मुझे उस केस स्टडी में डाल दिया कि इसमें आप क्या होता है इस तरीके से. तो it was 21 questions. So it was long duration, but मेरे साथ ये प्रॉफिट था कि मैंने उस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. I have worked on that, so it became easy for me to answer those questions. So yeah, interview was also good. And if you go through my result, so you will get to find that my interview saved me. Correct.
हाँ, इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छा किया हुआ है आपने. व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द इंटरव्यू? कितने टाइम का था इंटरव्यू आपका? 1 hour. 1 hour का? 1 hour and more than one, I would say, because हाँ दे आस्क, एक क्वेश्चन में फिर मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, तो पोल्यूशन क्या है, कैसे है, एंड देयर वर 5 members in that panel. पैनल, ओके. 5 पैनलिस्ट हुए थे. Yeah, कोई क्वेश्चन याद है, एक दो क्वेश्चन जो याद है जो? every question I have written all those questions. तो अच्छा मेरे अच्छा, एक पास बार सारे एक एक वन बाय वन बोल दो ना, तो ये जो वीडियोस जितने भी व्यूअर्स देखेंगे ये सो कोर्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा. simple question was human and animal in conflict in India. तो ये एक extempore का था 3 मिनट का. I didn't ask them for the second question because I was okay with that. So next question they asked like आप pollution पे काम करती हैं. Oftenly farmers of Punjab and Haryana are blamed for पराली burning and pollution contribution. इस बारे में आप क्या सोचती हैं? Pollution क्या होता है? एक अगर हम मुझे एक गांव के आदमी को समझाना है कि पोल्यूशन क्या है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में. एंड द नेक्स्ट वाज कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स क्या है, लाइक 2016 के रूल क्या है, 18, इवन दे आस्क फॉर द 1999 रूल्स की 1999 के रूल्स क्या थे. तो मैं थोड़ी अवेयर थी. एंड फिर उन्होंने कहा कि उसमें क्या चेंजेस थे. एंड देन नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या जानती हैं, इन एनवायरमेंट मूवमेंट्स, चिपकू मूवमेंट के बारे में फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया. एंड फिर सबरीमाला मंदिर केस उन्होंने उठा के मेरे से पूरा उसका पूछा कि क्या था, कैसे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे. एंड फिर उन्होंने देन आस्क मेरे से पूछा दैट पोल्यूशन का स्टेटस क्या है इंडिया में अभी रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग, और क्यों है. एंड मैं बिहार से हूँ, तो फिर उन्होंने ये भी किया बिहार में इतना पोल्यूशन क्यों है, जबकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, उतना एग्रीकल्चर भी नहीं होता, तो उसके रीजंस क्या है. तो और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये गीला कचरा सूखा कचरा क्या होता है, इसके यूज क्या है, इससे लाइवलीहुड कैसे रूरल में जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट. तो मैंने बस यही देखा कि मैंने जो काम किया था और मैंने जो DAF भरा था उसका डिटेल एप्लीकेशन, सारे मेरे डैफ. उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, DAF से सारे उसी से थे. ओके, सो लकली व्हाटएवर यू फिल्ड इन द डैफ एंड सेम क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड यू एंड या प्रिपेयर थे आप. तो या वो एक एड ऑन था. सो एक्चुअली इट इज वेरी गुड कि आपने इतने सारे टॉपिक बता दिए. सो लाइक काफी व्यूअर्स के लिए एड ऑन होगा इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरव्यू प्रिपरेशन. as you guys said कि आपने जो डैफ में फिल किया है वही आएगा, एंड आई फेल्ट दैट कि जो मैंने डैफ में फिल किया था वही मेरे से उन्होंने पूछा ना, नॉट इधर उधर का कुछ नहीं, जो मैंने लिखा था वही मेरे से पूछा. Okay, okay, great. What tips or the suggestion you want to give to upcoming year aspirants, those who are targeting for TISS 2022, 23, 24, so on? Like, my only tips is कि if you dedicatedly spend only 3 to 4 hours, it's enough. Like आप अपने weak parts पे 3 से 4 घंटे काम करो, बाकी जो आपका अच्छा पार्ट है जो आप कर सकते हो वो तो आप कर सकते हो, आप जान रहे हो कि आप कर लोगे, तो उसे आप थोड़े टाइम में भी कर लो. लाइक मैंने जीके को 3-4 घंटे में मैंने जनरल नॉलेज को इंक्लूड नहीं किया, बस मैंने क्वांट और इंग्लिश पे फोकस किया, क्योंकि जनरल नॉलेज की बुक मेरे पास है. आजकल तो फोन सबके पास है, यूट्यूब पे आपको करंट अफेयर्स की पूरी लिस्ट मिल जाती है. तो एंड करंट अफेयर इज द की गेटिंग TISS. करंट अफेयर इज द की, आई मस्ट से, क्योंकि क्वांट में होता है ना कि आपने पढ़ा, आप फॉर्मूला भूल गए या कुछ हो गया हो, बट ये जीके वाले रहते हैं दिमाग में. आप इट विल नॉट टेक मच टाइम एग्जाम सेशन में, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका, और इट रिटर्न्स. It returns, but it's just that कि you should go through all the current affairs, all the data. ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. Yeah, but I would like to suggest Lucent for static GK is very good, and if you go through the question now, they are equal weightage देते हैं, statics को भी और general को भी. Statics Current ज़्यादा affairs. रहते हैं. Yeah. Okay, okay. Fine. I think काफी lots of information shared by you in terms of the preparation and in terms of the interview and what to do for the GK basically. आप current affairs को and strategy को equally importance दो, and yeah, this much of preparation if you are doing तो easily crack हो जाएगा आपका. So here we end with Kavita. Thank you Kavita coming and sharing your detailed experience regarding the TISS journey.
And once again, congratulations, selection हो गया अपना TISS में, Tuljapur campus. So now start your academic. So Thank you so much, and all the best to everyone who is watching this video. okay, thank you guys, and see you in the another podcast. Bye bye. Thank you.